So we all are aware that CBT mode is on. The next exam that you people are going to appear for will be in CBT mode, that is computer based testing. And if we look at the CBT mode exams, we have seen that you get a lot of assertion and reason questions, you get a lot of statement 1 and statement 2 questions and multiple selection questions. Basically, we can say that in CBT board, we have always seen that factual questions plus your in-depth analysis or subjective kind of questions are there. So it will be very good for you that you start preparing these questions from today only. If you are sitting brooding over the fact that OMR ही होना चाहिए था and fact based questions ही आते तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता, you can keep on doing that. But if you really want to crack this exam, you will have to do complete or equal analysis of these kind of questions. In today's video, I am going to let you know that what are the tricks, techniques and the strategies that you need to learn while you appear, while you are in, while these questions come in front of you. What are the kind of keywords that you need to keep in mind? What are the techniques using which you can crack these questions very easily? So all of this we are going to talk about in today's video. If you are new on my channel and you do not know anything about my channel, go on the playlist and see. I have made a lot of free content on this channel which will be very helpful for you, be it for your literary theory or be it for your British literature. There is also so many playlists where I have talked and explained you different kind of questions of different sections. Uski bhi playlist separately bani hui hai, so it will be very helpful for you if you go and watch those videos. These are for completely free. Go and just make use of it. And if you are someone who do not know about the PYQ test series that we provide, completely topic wise segregated, section wise segregated, you can go on and message us on this particular number and we will let you know, which will be very helpful for your preparation. Now moving on to the question, as you can see over here, what characteristics of 17th century metaphysical poetry sparked the enthusiasm of modernist poets and critics? जब भी आपके सामने ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं where you have been asked the questions and आपको multiple statements you have been given, you have to find out the most apt statements and according to that you have to means find out the best possible answer. ऐसे में your factual information as well as your analytical information comes into rescue. यहाँ पे आपसे metaphysical poetry के बारे में पूछा गया है. If you are someone जो बहुत ऊपर से superficially पढ़ाई करता है, उसके लिए ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को करना आसान नहीं होगा. बिकॉज मेटाफिजिकल राइटर्स, लेट मी टेल यू कि 17th सेंचुरी के ऐसे आपके मेटाफिजिकल पोएट्स या राइटर्स आए थे जो बहुत ज्यादा कंसीट्स का इस्तेमाल करते थे. दे वर वेरी फेमस फॉर यूजिंग इन्वेंटिव यूज ऑफ इमेजरी और योर conceits are your extended metaphors where you compare two extremely dissimilar things and those comparison is very weird. When you see John Donne comparing two lovers from the two legs of a compass, you get extremely confused that how and from where is he comparing this type of comparison, or is he making a this type of comparison? That is so weird and nowhere similar. So this type of comparison is known as conceits, for which your metaphysical poets were very famous for. They were also famous for their religious kind of poetry. Most of the writers or the poets that come under this metaphysical poets were either clergymen or who were associated with your church and the Bible for any reason. Okay, so in metaphysical poetry you see the themes of love, you see spiritual poetry, you see love in the form of platonic love and not physical love. These are all the characteristics that you come to know about your metaphysical poets. Now one thing that you have to be clear, that there were two critics who completely criticized the metaphysical poetry. One is your Samuel Johnson. If you are having a copy and a pen, please keep noting these extra points down, because nobody is going to tell you these extra points. In इन्हीं से ही questions पूछे जा रहे हैं. Usually what students do is that you take a movement, you learn the names of the particular movement and you just go thinking कि बस मेरा पेपर अब क्लियर हो जाने वाला है. बट इन डेप्थ क्वेश्चन से इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना पड़ता है. So it was Samuel Johnson and your John Dryden, both of them
criticized your metaphysical poets and they said that they were a loose group of 17th century poets who were using extremely complex language, occult resemblances ये लोग use किया करते थे, complex language का use किया कर रहे थे, and these were the two critics जिनको इनकी poetry बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी, and ये उन्होंने इनको बहुत criticize किया है. Samuel Johnson has said that heterogeneous ideas yoked together. Then your John Dryden has said that done affects the metaphysics. These are all the critical lines that they have used for metaphysical poets. But in your 19th century, with the advent of the modern poetry, there were modernists and there were modernist critics, especially T.S. Eliot, who were very appreciative of your metaphysical poets because they were themselves using a very complex kind of poetry, a poetry that was uncertain of their age, showing all the disillusionment of the modern era. Hence, they were very, very appreciative of the metaphysical poetry because it could not be, you cannot understand metaphysical poetry in just one go. You will have to use your intellectual depth because these poetries are completely ambiguous and they are intellectual. So hence now you can go up to this question and see that what were the characteristics of 17th century metaphysical poetry that sparked the enthusiasm of modernist poets and critics. वो कौन सी ऐसी qualities हैं जो modernist critics को आपके metaphysical poetry की पसंद आती है? Your answer becomes point number 1 and point number 4, where the intellectual complexities of the metaphysical poetry was liked and appreciated by the modernist poets. Also, their union of thought and passion. Whenever you are going to see my courses, which will be coming very, very recently, from your literary movements, you are going to see I will provide you exact keywords that will help you solve these kind of questions. जहाँ पे मैंने अपने notes पे भी maintain किया है that intellect and feelings are the two keywords that were really appreciated by the modernist for your metaphysical poets. So I hope आपको ये जो particular question है clear हो गया होगा. Let's move on to the other. हर क्वेश्चन में द एक्सप्लेनेशन दैट आई विल बी गिविंग यू वो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा. इफ यू वांट यू शुड राइट इट डाउन बिकॉज दीज आर सम पिन पॉइंटर्स दैट यू आर नॉट गोइंग टू गेट इजीली. ठीक है. पॉइंट नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर सेकंड विच इज assertion and reason question. Discourses are cultural and social practices rooted in psychic and physical reality. This is the assertion. And reason says Foucault, that is Michel Foucault, defines discourses as the material manifestation of thought which shapes our subjectivity. Now, whenever this kind of question pops up in front of me, what is the technique that I apply? First things first, I see that, hey, they are talking about Michel Foucault. I immediately make an inference or a reference that, oh, Michel Foucault belongs to your post-structuralist era, and post-structuralists were all those people who did not go by the rules of the conventional or the traditional society or the discourses or be it your literature. जितने भी आपके conventional and traditional people जो structuralism को बहुत ही fixed scenarios में देख रहे थे, binary oppositions के ही तौर पे ही देखना पसंद कर रहे थे, उसको आपके post structuralist people were completely rejecting and they were coming up with an idea that the one signifier and signified is a wrong concept and that you can see multiple play of signifiers under your post-structuralism. That means the meanings are not fixed. Anything that you need to, that you are coming across of the society, of the rules of your language is not fixed, it is ever changing and has multiple interpretations. So when I come to know about this particular mind or when I recall of this particular option, मेरे लिए ये क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है. Now यहाँ पे बात की गई है आपके सामने डिस्कोर्सेस के बारे में. डिस्कोर्सेस बहुत ही सिंपल चीज़ होती है. आपकी किसी भी टॉपिक को लेके क्या समझ है, क्या आप उसके बारे में जानते हो, योर नॉलेज and the words that you know about that particular topic or be it any kind of topic that you are able to communicate or debate over that particular topic is known as a discourse. ठीक है. So right now if I say, अगर मैं आपके सामने किसी legal system के बारे में बात करूं या फिर इंडिया के education system के बारे में बात करूं, the words or the choice of words that I will use in front of you will show you कि मुझे उस topic के बारे में कितना पता है, how much knowledgeable I am about that particular topic. You will come to know about my biases, you will come to know
कि मैं एक बायस्ड नजर से गवर्नमेंट को देख रही हूँ या फिर मैं बहुत ही अनबायस्ड होकर किसी चीज को देख रही हूँ. सो वट एवर वर्डिंग्स, वट एवर डिस्कोर्स, द चॉइस ऑफ वर्ड्स दैट आई एम यूजिंग इन फ्रंट ऑफ यू to talk about any particular given topic in literature or in the world, you will come to know that that will act as a material entity of my thought. मेरे दिमाग में क्या चलता है, मुझे उस टॉपिक के बारे में क्या पता है, मेरी कितनी समझ एंड कितनी नॉलेज है, वो आप सब लोग पता लगा पाते हो by the use of words, by my choice of words. So this is what Michel Foucault says. Michel Foucault आप सबको पता होना चाहिए. पावर, नॉलेज एंड आपके डिस्कोर्स के बारे में बात करते हैं. पेनोप्टिकॉन इन्होंने टॉपिक दिया हुआ है. मैडनेस इन सिविलाइजेशन, बर्थ ऑफ द क्लिनिक, दीज आर ऑल द टॉपिक्स जिसके बारे में ये अपने बोल सकते हैं कि व्हेन यू लर्न मिशेल फोको पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर इनके इतने सारे टर्म्स जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है. सो यहाँ पे जब आपको ये डिस्कोर्सेस को लेकर बताया जाता है, आपका आंसर है बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि यहाँ पे आपको बताया है कि डिस्कोर्सेस जो कल्चरल एंड सोशल प्रैक्टिसेस में रूटेड होते हैं वो आपकी साइकी और आपकी फिजिकल रियलिटी को शो करते हैं. फुको डिफाइंस डिस्कोर्स एज द मटेरियल मैनिफेस्टेशन ऑफ थॉट व्हिच शेप्स आवर सब्जेक्टिविटी. मेरी किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके क्या समझ है वो आपको मेरे बात करने के तरीके से, हाउ वेल वर्स्ड, हाउ वेल नॉलेजेबल आई एम, वो मेरे चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड डिस्कोर्स करने का जो मेरा तरीका होगा उससे पता लग जाएगा. यू एज अ स्टूडेंट्स, आप लोग यूट्यूब पे कई सारे टीचर्स को सुनते हैं या फिर कई सारे इन्फ्लुएंसर्स को सुनते हैं, आपको उनके भाषा का इस्तेमाल करने का तरीका या हाउ नॉलेजेबल या हाउ इन डेप्थ नॉलेज उनको किसी भी सब्जेक्ट की है वो पता लग पाता है बाय द काइंड ऑफ वर्ड्स दे चूज एंड द काइंड ऑफ पोर्ट्रेयल दे डू इन फ्रंट ऑफ यू. इससे बहुत क्लियरली आपको पता लग सकता है कि किस इंसान के अंदर कितनी नॉलेज है, वो नॉलेज का क्या दिखावा कर रहा है या फिर एक्चुअल में उसको उस टॉपिक के बारे में पता है. सो थॉट्स जो आपके डिस्कोर्सेस होते हैं, आपकी जो लैंग्वेज होती है, वो कंप्लीट मटीरियलिस्टिक बोल सकते हैं कि एक रेफरेंस होता है जो शो करता है कि आपके दिमाग में किसी टॉपिक को लेके क्या चल रहा है. आई होप दिस इज क्लियर. ये टॉपिक था आपका लिटरेरी थ्योरी का. अगर आपको ये टॉपिक समझना है या फिर आपको लिटरेरी थ्योरी की पूरी लिटरेरी थ्योरी बहुत ही आसान भाषा में समझनी है, हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप मेरे कोर्स को जरूर से चेकआउट करें. मेरा फुल कोर्स बना हुआ है. इसको करने के बाद आपको लिटरेरी थ्योरी को लेके जो कॉन्फिडेंस फील होगा, यू विल फील कंप्लीटली कॉन्फिडेंट कि मुझे ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है जो इतना डिफिकल्ट है वो मुझे अच्छे से समझ में आ गया. अगर आप पता लगाना चाहते हैं इस टॉपिक के बारे में या फिर इस कोर्स के बारे में, तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं. नाउ पॉइंट नंबर 3, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 ये क्वेश्चन है जहां पर ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म से आता है. जानबूझ के आई हैव ब्रॉट फॉर यू मिसलेनियस क्वेश्चन सो दैट यू कम टू नो अबाउट ऑल द सब्जेक्ट्स एंड ऑल द सेक्शंस एक ही बार में एंड आपको मदद मिले. ठीक है. क्रिटिसिज्म इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ जजमेंट अबाउट द नेगेटिव एंड पॉजिटिव क्वालिटीज ऑफ समवन और समथिंग. दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. अगर आपने क्रिटिसिज्म का इंट्रोडक्टरी क्लास भी किया है या आपने क्रिटिसिज्म को समझा है, जो अक्सर लोग समझते हैं कि सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं. कोई भी मूवी हम लोग की रिलीज होती है तो यू सी देयर आर सो मेनी मूवी इन्फ्लुएंसर्स या मूवी का रिव्यू करने वाले जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो अपना मत देते हैं. वो बताते हैं कि दीज वर द गुड पॉइंट्स दैट दे फाउंड इन दैट पर्टिकुलर मूवी गुड एंड दीज वर द बैड पॉइंट्स दैट दे डिड नॉट फाइंड इंटरेस्टिंग और कुड हैव बीन बेटर. So whenever you talk about any piece of literature, any piece of art, or you talk about any piece of text of an artist, poetry, movie, song, be it their clothes or anything, criticism के अंदर there are involved both your good qualities as well as your bad qualities. So this particular point is correct where they are talking about that criticism के अंदर you get both positive as well as negative qualities of a particular person or a thing. ठीक है. Criticism can be theoretical, practical, impressionistic, effective, prescriptive and descriptive. Now this is something that you need to understand in a full-fledged class for sure. आपका बहुत ही कम समय में मेरा literary criticism का कोर्स आने वाला है, आप उसमें ये सभी चीज़ों को पढ़ सकते हैं. For this particular point, I would like to tell you कि criticism बहुत सारे टाइप्स का होता है. Theoretical होता है, prescriptive होता है जहाँ पे आप बताते हो कि आपके criticism के अंदर ये गलत था, ये हो सकता था. Critical होता है, then descriptive होता है.
मतलब बहुत सारी चीजें जो आपके सामने लिखी हुई हैं जिसको मैं डिटेल में आपको समझाऊंगी। तो इससे हमारा ये जो स्टेटमेंट है वो सही बैठ जाता है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। यू कैन क्लियरली सी ओवर हेयर कि आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो दिखने में बड़े हैं, लेकिन अगर आपको सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी है, आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो बहुत ही इजीली आपके क्वेश्चंस बनते चले जाएंगे। ठीक है, इफ यू आर ऑलरेडी लाइकिंग द वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो डू राइट अ फीडबैक, जिससे यूट्यूब को एक अच्छा सिग्नल मिलता है कि यू पीपल आर लाइकिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड यू आर लाइकिंग दिस पर्टिकुलर चैनल इन जनरल, जिसकी वजह से द चैनल डज गुड्स, द वीडियो डज गुड्स, एल्गोरिदम को एक अच्छा सिग्नल मिलता है एंड विद दैट माय चैनल विल डू गुड। सो इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो एंड आपका कोई भी फीडबैक है तो आप जरूर से नीचे लिख के जाए। हर एक बच्चे का एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, इस चैनल के लिए भी और मेरे लिए भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, from among the following identify the incorrect observation regarding Ferdinand de Saussure's seminal distinction between Lang and Parole। अब मैं ऑप्शंस को देखे बिना अगेन मैं जो करती हूँ वो मैं आपको बताऊंगी कि जैसे ही मैंने फर्डिनेंड डे सश्योर का नाम सुना तो मेरे दिमाग में आ जाता है कि ओ फर्डिनेंड डे सश्योर स्ट्रक्चरलिज्म को बिलोंग करते हैं। मैं स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में 3-4 पॉइंट्स याद करती हूँ कि ये बाइनरी ऑपोजिशंस के बारे में बात करते हैं, ये आपके सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड के बीच में एक प्रॉपर कनेक्शन बनाने के बारे में बात करते हैं। ये कहते हैं कि एक सिस्टम जो आपका लैंग्वेज हो गया या फिर किसी भी चीज का एक जो सिस्टम होता है वो एक इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है एंड नो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कैन स्टैंड इन आइसोलेशन। आपका इंटरकनेक्शन होता है एक दूसरे से, तभी स्ट्रक्चरलिज्म एक स्ट्रक्चर्ड और एक रूल का पार्ट है। इस चीज को जब मैं अपने दिमाग में याद कर लेती हूँ तो मेरे लिए क्वेश्चंस करना इजी हो जाता है। अगर आप ऑलरेडी इस चीज को समझ रहे हो, अग्री कर रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो तो मुझे एक बार कमेंट करके जरूर से बताना और इस जो टेक्निक को मैं आपको बता रही हूँ उसको अप्लाई करना स्टार्ट करना। वंस आई एम डन रिकॉलिंग कि मेरा जो स्ट्रक्चरलिज्म था वो क्या क्या था, आई विल नाउ रिकॉल कि फर्डिनेंड डे सश्योर की इंपॉर्टेंट जो थ्योरीज हैं वो मैंने क्या क्या पढ़ी हुई हैं। सो लैंग एंड परोल इज वन थिंग जो मैंने जरूर से पढ़ा हुआ है। सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने फर्डिनेंड डे सश्योर का पढ़ा हुआ है। देन मैंने सिंक्रोनी एंड डायक्रनी का कॉन्सेप्ट इनका पढ़ा हुआ है। लिंग्विस्टिक्स या लैंग्वेज एज एन इंटरलॉकिंग सिस्टम मैंने पढ़ा है। इसको करने के बाद मुझे याद आ जाएगा कि हाँ मैंने लैंग एंड परोल तो बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, जहां पे मैंने देखा है कि जो लैंग होता है वो एक प्रॉपर सिस्टम होता है ऑफ रूल्स ऑफ ग्रामर ऑफ अ पर्टिकुलर सिस्टम एंड परोल जो होता है वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंस होता है ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम जिसके रूल्स मैंने पढ़े हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे चेस खेलना है, इफ आई वांट टू प्ले चेस, देयर विल बी समवन हु विल एक्सप्लेन टू मी दैट चेस के अंदर दीज आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट यू नीड टू फॉलो इफ यू वांट टू प्ले चेस। सो जो रूल्स मुझे सिखाए जाएंगे वो किसी भाषा के रूल्स हो सकते हैं, वो किसी गेम के रूल्स हो सकते हैं। एनी सिस्टम or rules will come under the lang or any particular instance that I use or apply using that particular rules will come under your parole। और जैसे ही मैं ये चीजों को रिकॉल कर लेती हूँ मेरे लिए क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। एंड here you can clearly see the answer कि parole is a particular language system the elements of which we learn as children and which is codified in our grammars and dictionaries, whereas lang is the language occasion। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर चीज है जो मैंने लैंग एंड परोल के बारे में बताई बिल्कुल उल्टी पड़ रही है एंड यही हमारा आंसर है, क्योंकि हम लोग को इनकरेक्ट आंसर निकालना है। जो भी यहाँ पे लैंग के लिए लिखा हुआ है वो परोल के लिए सही बैठता है एंड जो परोल के लिए लिखा हुआ है वो लैंग के लिए सही बैठता है। इसकी वजह से ये आंसर मेरा करेक्ट आंसर बन गया। आई होप आपको बहुत इंजॉयबल लग रहा होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो एंजॉय नहीं करेंगे इन क्लासेस को, क्योंकि उनको बस चाहिए कि मैम मूवमेंट पढ़ा दीजिए, मुझे आप क्या कहते हैं राइटर्स के नाम दे दीजिए मुझे थ्योरी पढ़ा दीजिए, आप मुझे उनके नाम दे दीजिए, मुझे इतना डिटेल में नहीं जाना है। बट ऐसे क्वेश्चंस जिनके सामने आते हैं, माय स्टूडेंट्स आर सो वाइज कि उन्होंने खुद डिमांड किया कि मुझे ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस कराइए एंड दैट इज व्हाई आई एम हियर, आई एम एक्सप्लेनिंग दीज क्वेश्चंस टू यू। तो आपके अंदर मैं एक टेम्परामेंट पैदा करने की कोशिश कर रही हूँ, वेयर एवरी डे इफ आई कम विद दीज डिफिकल्ट क्वेश्चंस विथ यू एंड मैं इनको एक्सप्लेन करूंगी तो आपके अंदर भी टेम्परामेंट पैदा होगा ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को करने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे।
कल्चरल स्टडीज से ये आया है। कल्चरल स्टडीज इज सिंपली द स्टडी ऑफ कल्चर एज ए डिस्क्रीट एंटिटी डाइवर्स्ड फ्रॉम इट्स सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। आप सभी ने कल्चरल स्टडीज को अगर पढ़ा है तो इतनी बात आप सबको क्लियर होनी चाहिए कि कल्चरल स्टडीज में सबसे पहले आप बात करते हो कल्चर के बारे में। कल्चर कुछ नहीं होता है, आपके उठने बैठने का तरीका, आपकी चॉइसेस एंड डिसलाइक्स के बारे में बात करने का तरीका, आप किस टाइप के कपड़े पहनना पसंद करते हो, आप मीडिया में क्या देखना पसंद करते हो, आप किस टाइप के सीरियल देखना पसंद करते हो, आप कौन सी टाइप की न्यूज चैनल्स देखना पसंद करते हो। तो ये जितनी भी आपकी लाइक्स डिसलाइक्स या फिर जो भी चीजें आपके अराउंड है, जो मीडिया है, वो आपकी जो है थिंकिंग को शेप करती है। सो आप कौन सी चीज को कंज्यूम करते हो उसको देखने में आपके कल्चरल स्टडीज पीपल और द कल्चरल स्कॉलर्स आर वेरी मच इंटरेस्टेड। जब आप कल्चरल स्टडीज पढ़ेंगे तो मतलब आई लव कल्चरल स्टडीज बिकॉज ये करंट सिनेरियोस के बारे में बात करता है, मीडिया के बारे में, पॉप कल्चर के बारे में, कि किस तरीके से मीडिया हम लोग के दिमाग पे असर डाल रहा है एंड हाउ इट इज शेपिंग आवर रियलिटी एंड द थॉट। हमारे थॉट्स को किस तरीके से हमारा पॉप कल्चर एंड मीडिया चेंज कर रहा है, इसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग है कल्चरल स्टडीज, आप जरूर से इसको पढ़ें। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कल्चरल स्टडीज आपकी पॉलिटिक्स एंड आपकी सोसाइटी से बिल्कुल जुड़ा हुआ होता है। पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है उसका असर आपके ऊपर पड़ता है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसका पॉलिटिक्स पर असर पड़ता है। सो यू कैन नॉट से कि आपका जो सोशल एंड पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस है वो अलग हैं कल्चरल स्टडीज से। इसकी वजह से ही आपका फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाता है। एंड अगर आप दूसरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो यू कैन क्लियरली सी कि जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ट्रू है कि कल्चरल स्टडीज एम टू अंडरस्टैंड कल्चर इन all its complex forms and to analyze social and political context within which it manifests itself। आप जिस भी सोसाइटी का पार्ट है, आपका जो कल्चर आप फॉलो कर रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है कि वो पॉलिटिक्स से, सोसाइटी से, इकोनॉमिक कंडीशन से उसका असर ना पड़े, उसका फर्क या इन्फ्लुएंस ना पड़े। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर कल्चरल स्टडीज। सो कल्चरल स्टडीज इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड एंड इससे आजकल काफी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। इफ यू आर समवन जिसको कल्चरल स्टडीज वंस एंड फॉर ऑल खत्म करना है तो आप मेरे कोर्स को जाके देख लीजिए, कुछ 17 to 18 लेक्चर्स है, उसमें आपका कल्चरल स्टडीज पूरा कंप्लीट हो जाएगा एंड उससे आपके क्वेश्चंस जब बनने लगेंगे यू विल फील गुड ऑन दैट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, विच इज स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। आई होप यू आर ऑलरेडी इंजॉइंग दिस टाइप ऑफ वीडियो बिकॉज आपको पूरे इंग्लिश लिटरेचर के इंटरनेट पे ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। टेल मी इफ यू अग्री विद दिस कि आपने कभी भी किसी को इतने डिटेल में क्वेश्चंस, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस तो कराते हुए ही नहीं देखा होगा बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड बच्चे इन सारे वीडियोस को क्लिक ही नहीं करते हैं क्योंकि उनको चाहिए छोटे छोटे क्वेश्चंस जिनको देखकर वो कॉन्फिडेंट फील करे या फिर वो एक इल्यूजन में रहे कि उनकी तो तैयारी अच्छी है। बट रियलिटी ये है, जो भी इस चीज को एक्सेप्ट करता है वो इस वीडियो को यहाँ तक ऑलरेडी देख रहा होगा। ठीक है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। इट इज ट्रू दैट देयर इज एन एनालॉजी बिटवीन द वर्क्स ऑफ एन ऑथर एंड द एक्सपीरियंस ऑफ हिज लाइफ। अब व्हाट आई डू इज कि मैं जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस देखती हूँ तो सबसे पहले उसके आंसर की तरफ भागने से पहले व्हाट आई ट्राई टू डू इज आई ट्राई टू यूज माय माइंड एंड आई ट्राई टू फाइंड अ अल्यूजन एंड अ रेफरेंस कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो कौन से सेक्शन से आता है। वंस माय माइंड नोज कि ये इस सेक्शन से आया है एंड मैंने इसको इस सब सेक्शन के अंदर पढ़ा हुआ है, मुझे उसका आंसर जल्दी मिल जाता है। आप लोग बताना कि क्या आप लोग भी ये चीज करते हो या नहीं। सो जब भी मैं इस क्वेश्चन को देख रही हूँ तो मेरा दिमाग काम करने लगता है कि ये क्वेश्चन लिटरेरी थ्योरी के रीडर रिस्पॉन्स से आया हुआ है, जहां पे ये लोग बात करते हैं कि रीडर इज द एक्चुअल गॉड ऑफ अ पर्टिकुलर टेक्स्ट एंड नॉट द ऑथर। यहाँ पे आपको बोला गया है कि इट इज ट्रू दैट देयर इज एन एनालॉजी बिटवीन द वर्क्स ऑफ एन ऑथर एंड द एक्सपीरियंसेस ऑफ हिज लाइफ। यहाँ पे बताया गया है कि जो ऑथर होता है एंड जो वो टेक्स्ट लिख रहा है उसके टेक्स्ट के बीच में और उस ऑथर के जीवन के बीच में एक प्रॉपर कनेक्शन होता है। अगर मेरे जीवन काल में नोटबंदी हुई है, अगर मेरे जीवन काल में डिमोनेटाइजेशन हुआ है, दैट मीन्स अगर मेरे जीवन काल में आई सॉ कोरोना आया था एंड व्हाट ऑल वी सॉ कि कितने बुरी तरीके से द पॉपुलेशन गॉट वाइप्ड ऑफ जस्ट बिकॉज कि हम लोग को खांसी जुकाम हो जा रहा था एंड अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम वाज गेटिंग इफेक्टेड। सो ऑल दीज आर द
आर द थिंग्स, आर द इवेंट्स दैट इफ आई एम अ राइटर समहाउ मेरे वर्क में कहीं ना कहीं इसकी झलक देखने को मिलेगी। अगर आप सब लोग ने ब्रिटिश लिटरेचर में सैमुअल पेप्स को पढ़ा है, जिनके जीवन काल के दौरान 100 years वॉर हुआ था, महामारी आई थी, देन ग्रेट फायर ऑफ लंदन लगी थी, तो उनके वर्क्स में, उनकी डायरी में आपको इसका रेफरेंस देखने को मिल जाएगा। अब ऑफ कोर्स उन्होंने एक एक चीज का वर्णन नहीं किया होगा कि दीज आर द थिंग्स दैट हैपेंड, इतने घर जल गए, इतने लोग मर गए। ऑफ कोर्स ही विल नॉट गिव यू एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, but you will see that whatever happenings and the events that happen in your life, if you are an author or an artist or a musician or a lyricist, आप कहीं ना कहीं आपके काम में उसकी झलक देखने को आपको मिलेगी, and that is why this statement becomes correct. The works may be seen as an incomplete translation of the life. Now, as I said, कि if I saw that मेरे लाइफ टाइम में आई सॉ कि इतनी बड़ी फायर आई थी, ग्रेट फायर ऑफ लंदन हुई थी, आई एम नॉट गोइंग टू पेन डाउन इन माई पर्टिकुलर वर्क दैट these were the number of houses that got burned, these were the number of people that got that died, और या उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ। आई विल गिव यू अ ओवरऑल जिस्ट। सो आप अपनी हर एक लाइफ के एक्सपीरियंसेस अपने काम में नहीं डाल देते हो, एंड दिस इज व्हाट दिस क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। ये जो थोड़ा क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है, या तो आपसे बनेगा या तो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। द थिएटर वाज अ ग्रेटर पॉपुलैरिटी इन 18th century इंग्लैंड। स्टेटमेंट 2, थिएटर हैड कोर्ट पैट्रोनेज इन एंड अराउंड लंदन। अब आप सबको ये चीज पता होनी चाहिए कि भैया इंग्लिश लिटरेचर के हम लोग स्टूडेंट हैं, सो थिएटर इज समथिंग एज अ जॉनरा ऑफ लिटरेचर हम लोग ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। हम लोग के जब 16th century वगैरह में यूनिवर्सिटी वेट्स आते हैं, ठीक है, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से, कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड से पढ़ के, दे वर राइटिंग वेरी गुड ड्रामास, वेरी गुड कॉमेडीज, ब्लैंक वर्ड्स का इस्तेमाल करके। इन देयर एरा थिएटर वॉज लिटरली बूमिंग, मतलब बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने थिएटर की शुरुआत की, एंड इट इज सेड दैट दे पेव्ड द वे फॉर शेक्सपियर, जो आगे जाके थिएटर को आप सब लोग जानते हो कि एपेक्स में लेकर चले जाते हैं, ऊंचाइयों में लेकर चले जाते हैं। आफ्टर योर शेक्सपियर धीरे धीरे बेन जॉनसन आते हैं और भी बहुत सारे राइटर्स आते हैं, बट देन आपके पॉलिटिकली चीजें खराब होने लगती है, देन चार्ल्स वन का एग्जीक्यूशन हो जाता है, ओलिवर क्रॉमवेल आते हैं, बैन लग जाता है आपके थिएटर के ऊपर, फिर रेस्टोरेशन एज वगैरह में एज ऑफ रिवाइवल आती है जहाँ पे आपके थिएटर को रिवाइव किया जाता है, एंड फिर से आपके जो थिएटर है अराउंड 17th century एंड ऑल थिएटर फिर से आपका चलने लगता है। क्वेश्चन आपसे यहाँ पे कह रहा है कि थिएटर वाज अ ग्रेटर पॉपुलैरिटी इन 18th century इंग्लैंड, विच इज नॉट करेक्ट। आपके 18th century इंग्लैंड में थिएटर आपके रिवाइव हो चुके थे ऑलरेडी 17th century में, तो थिएटर चल रहा था, लेकिन बाय द 18th century आपके दो ऐसे जॉनरास थे, विच इज नॉवेल्स एंड योर पीरियोडिकल्स, जो बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे। सो यू हैव टू कीप अ ट्रैक ऑफ ऑल द एजेस, ऑल द इवेंट्स दैट टुक इन दोस पर्टिकुलर एजेस, एंड देन कौन सी एज के अंदर कौन सा जॉनरा आपका बूम करता है, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। नॉट टू से कि थिएटर आपके 18th century में बंद हो चुके थे, थिएटर थे इस टाइम पे, लेकिन टू से कि 18th century में आपके थिएटर की पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा बढ़ गई थी इज अ फॉल्स नैरेटिव। नॉवेल्स एंड पीरियोडिकल्स बहुत ज्यादा, सटायर्स वगैरह बहुत चलने लगे थे, तो ये इस एरा में फेमस हो गए थे ना। थिएटर हैड कोर्ट पैट्रोनेज इन एंड अराउंड द लंदन। इस बात को सब बच्चों को पता होगा कि आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज एंड फाइनेंशियल हेल्प मिला करती थी, जो भी अच्छे थिएटर्स, जो भी अच्छे वर्क्स अपने मुनाक्स के लिए लिखा करते थे, आपके मुनाक्स को, आपके किंग्स एंड क्वींस को आपका वर्क पसंद आता था, तो दे यूज टू गिव यू नाइटहुड आपको दिया करते थे, फाइनेंशियल सिक्योरिटी दिया करते थे, रॉयल पेट्रोनेज आपको दिया करते थे। सो दिस इज करेक्ट, बट आपका स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों आपका अलग हो जाता है। दैट इज वाई योर स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 है ट्रू, क्योंकि इस वाले स्टेटमेंट में 18th century का कोई यहाँ पे नहीं बोला गया है, यहाँ पे सिर्फ रॉयल पैट्रोनेज के बारे में बात की गई है, विच इज ट्रू। यहाँ पे 18th century को लेकर जो बात की गई है वो फॉल्स बैठ जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग। मुझे सब बच्चे, एक एक बच्चा जो यहाँ पर आया है, आपको कुछ भी नया सीखने को मिला तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आई वुड कंसिडर दिस एज अ मोटिवेशन ऑन माय पार्ट कि चलो मैंने जो मेहनत की, इतने क्वेश्चंस को मैंने सेग्रीगेट किया, वो आपको पसंद आई एंड आपको कुछ नया जानने को मिला। क्वेश्चन नंबर 8, assertion and reason. Many modern writers infused their works with an extreme sense of uncertainty, disillusionment and despair. बहुत ही सही चीज बोली गई है कि
अगर मैं इस स्टेटमेंट को जैसे ही देखती हूँ तो आई विल नाउ रिकॉल कि हाँ भाई मॉडर्न एरा में द राइटर्स वर वेरी सर्टन वर वेरी अनसर्टन, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन के बाद से डिसल्यूजनमेंट देखने को मिला था, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में लोग चले गए थे, एंड डिस्पेयर वाज दैट वन थिंग, वन थीम बन चुका था हमारे सारे राइटर्स के वर्क में कि आपके सारे राइटर्स को फ्रैगमेंटेड स्टाइल इस्तेमाल करनी पड़ी थी, एवरीथिंग वाज फ्रैगमेंटेड एंड डिसल्यूजनमेंट एंड अनसर्टन था। सो ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि आपके मॉडर्न ब्रिटिश राइटर्स का जो वर्क थे वो आपको कंप्लीट अनसर्टनिटी एंड डिसल्यूजनमेंट एंड डिस्पेयर, ये थ्री वर्ड्स आप लोग को जरूर से अपने नोट्स में मेंटेन करने चाहिए। मॉडर्न एरा आप जब भी पढ़ोगे तो आपको ये तीन चीजें देखने को मिलेंगी ही मिलेगी। देन द वेस्टलैंड एंड्स इन अ फ्लरी ऑफ रैंडम एल्यूजन्स। आप सबको पता है कि वेस्टलैंड इज अ वेरी डिसल्यूजनमेंट एंड अ वेरी फ्रैगमेंटेड काइंड ऑफ पोएम बाय आवर टी.एस. इलियट, जो कि परफेक्ट एग्जांपल माने जाते हैं मॉडर्न एरा को पोर्ट्रे करने के लिए। सो आपका ये तो पॉइंट बिल्कुल सही है कि वेस्टलैंड एंड हो जाता है बहुत ही अब्रप्टली एंड बहुत सारी चीजों को शो करता है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। दैट इज वाई बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। भाई यहाँ पे मॉडर्न राइटर्स की बात की जा रही है एंड सडनली आप वेस्टलैंड के बारे में बात करने लगते हो, तो पॉइंट तो दोनों यहाँ पे आपके सही हैं, लेकिन वेस्टलैंड का आपके मॉडर्न ब्रिटिश पोएट्री के डिसल्यूशनमेंट और इनसे आपको देखने को मिलता है, लेकिन इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। During the colonial era, the British used to call the Indian languages vernaculars. आप सबको पता होगा कि हमारी इंडियन लैंग्वेजेस को वर्नैकुलर बोला जाता है कि दीज आर वर्नैकुलर लैंग्वेज। वर्नैकुलर जो आपका शब्द होता है वो डोमेस्टिक नेटिव शो करता है कि आप किसी पर्टिकुलर जगह पे, आप वहीं पे पले बड़े हो, आपने वहीं पर जन्म लिया, तो आप उस धरती के नेटिव हो जाते हो। ठीक है, एंड जो भाषा आप अपने मदर टंग वगैरह फर्स्ट लैंग्वेज जो बोलना स्टार्ट करते हो वो आपकी वर्नैकुलर लैंग्वेज, डोमेस्टिक नेटिव लैंग्वेज बोली जाती है। वी डू नॉट यूज द वर्ड फॉर अवर भाषास बिकॉज, यहाँ पे ये इंग्लिश इन इंडिया से क्वेश्चन आता है, बहुत ही टिपिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन है जो बोलता है कि हम लोग अपनी भाषा के लिए इस वर्ड का खुद से इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, एंड क्यों कॉलोनियल एरा में दे यूज टू यूज दिस पर्टिकुलर टर्म कि अरे इंडियन वर्नैकुलर लैंग्वेजेस। तो इसका आंसर है आपका सेकेंड एंड फोर्थ। फर्स्ट थिंग कि आपकी जो वर्नैकुलर ये जो शब्द है ये लैटिन वर्ड है जो डोमेस्टिक नेटिव चीज को डिनोट करता है। वर्ण के अगर आप बिल्कुल लिटरल वर्ड में चले जाओगे, जो ये लोग कहते हैं कि इट इज होम बॉर्न स्लेव, ये एक बहुत ही डेरोगेटरी टर्म है। तो जब आप इस डेरोगेटरी टर्म को अपनी भाषा से जोड़ देते हो तो नो इंडियन इज गोइंग टू टेक दिस पर्टिकुलर थिंग अपॉन हिमसेल्फ और अपॉन देयर रिस्पेक्टेड लैंग्वेज कि आप हमारी लैंग्वेज को वर्नैक्युलर कह रहे हो, आफ्टर नोइंग दैट ये इसका एक्चुअल में डेरोगेटरी एक मीनिंग निकलता है। एंड ऑल्सो बाय नो मीन्स कि हमारे जो नेटिव्स ऑफ इंडिया थे वर स्लेव्स। आप कॉलोनियल रूल यहाँ पर लेके आए, आपने हमारे ऊपर राज किया, दैट डज नॉट मीन कि we as native of Indians are born slaves। तो इसी वजह से ये दोनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही बैठ जाते हैं अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। assertion and reason to give a text an author is to impose a limit on that text, to furnish it with a final signified to close the writing। अगेन ये रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी से आता है कि आप जब एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को उसके ऑथर से जोड़ देते हो, इससे आपकी रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी का कहना है कि आप लिमिट कर रहे हो उस टेक्स्ट को, क्योंकि अब अगर आपने अपने ऑथर से उस टेक्स्ट को जोड़ दिया है, यू आर लिमिटिंग द इंटरप्रिटेशंस एज पर द ऑथर हैज इंटेंडेड। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी से कि आपका जो इंटरप्रिटेशन होना चाहिए ऑफ एनी पर्टिकुलर text should be free from any kind of influence of its author, and reader should be that one person who should be the god of that particular text, who can come up with multiple interpretations as per his sociological and cultural context according to his mind। Okay, the text is made up of multiple meanings drawn from many sources, and this multiplicity is focused on the reader, which is a very correct concept according to your reader response theory, and hence आपका जो आंसर है यहाँ पे मेंशन नहीं है, both A and R are true and R is the correct explanation, इसका आंसर हो जाएगा। जहाँ पे आपका जो ऑथर वाला थिंग है
टू गिव एन ऑथर इज टू इम्पोज अ लिमिट। आप लिमिट डाल दे रहे हो, एंड ऐसा जब आप करते हो तो आप लिमिट कर देते हो किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट की इंटरप्रिटेशंस को, एंड व्हेन यू गिव दैट पर्टिकुलर लिबर्टी टू द रीडर, ही कैन कम अप विद सो मेनी इंटरप्रिटेशंस। इसी के साथ खत्म होता है हमारा वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, आई एम प्रिटी श्योर आपको मेरे पेड कोर्सेज भी अच्छे लगेंगे। ऊपर वाली जो लाइन है, दैट इज लिटरेरी थ्योरी एंड कल्चरल स्टडीज, आर कंप्लीटली अवेलेबल राइट नाउ। नेक्स्ट 15 डेज और 20 डेज के अंदर आपको लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इंग्लिश इन इंडिया एंड लिटरेरी मूवमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। आई एम बीइंग वेरी क्लियर, प्लीज डू नॉट मैसेज माय टीम एंड टेल देम कि नहीं ये वाले कोर्सेज तो मुझे नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि ये अवेलेबल नहीं है। कुछ दिनों में आपको अवेलेबल हो जाएंगे, एंड आई विल come on this channel and announce them, so you can keep means if you want you can wait for them, and फिलहाल के लिए आप इनको कंज्यूम करना स्टार्ट कर सकते हो। आपके क्वेश्चंस फंसेंगे इस कोर्स के अंदर, आपको हर चीज क्लियरली समझ में आ जाएगी। यू विल गो कॉन्फिडेंट आफ्टर यू वॉच दीज पर्टिकुलर कोर्सेज। आप जरूर से इनका फ्री डेमो देख सकते हैं, जरूर से आप मेरे यूट्यूब के काफी सारा जो फ्री कंटेंट है उसको कंज्यूम करते रहिएगा। मेरी PYQ टेस्ट सीरीज को जरूर से चेकआउट करें, जो आपको बहुत मदद करेगी टारगेटेड स्टडी करने में। एंड एट लास्ट आप जरूर से मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहिए, जहां पर आपको हर चीज के लिंक्स, फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री पोल्स डेली बेसिस पे आपको मिल रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, क्लिक करो, एंड इसकी जितनी भी फ्री सर्विसेज है उसको तो आप फ्री में अवेल करना स्टार्ट कर ही सकते हैं। डू लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। क्या क्या आपको नया जानने को मिला, एंड आर यू गोइंग टू एक्सपेक्ट दिस second part of the video or not? I'm going to take your leave, and I'm going to meet you up next in yet another video. Up till then, bye and take care.